Hello everyone, welcome to the Teacher Tube Science Online Study channel. Today we will discuss the chapter Electricity and its second part of NCERT Science class 10th. In the previous chapter we have discussed about the electricity, what is a charge, then properties of charge we have discussed already, then methods of charging we have discussed in the previous video, then what is electricity and how the electrons move in a circuit. Then it comes to electric current, we have discussed already. Then electric circuit, electric field, and electric potential and potential difference, that all we have discussed in the previous chapter. If you want to see this, please visit to the channel and watch the electricity part 1 from the channel. So coming to the this chapter, we will discuss electric circuit and its component. So electric circuit we have discussed already, that is electric circuit is a closed path in which electric current can flow, is called an electric circuit, or we can say there a closed path in which electric current flows is an electric circuit. So there are two types of circuits. One is open circuit. If the circuit is open, no current will flow. The second one is the closed circuit. If the circuit is closed, the current will flow continuously. For example, here you can see when the circuit is open, the current will not flow, but when circuit is closed, the current will flow and the bulb will glow. Some symbols of electric circuit are given here. So these are very important. An electric cell can be defined as this. +1 sign will be a little bit higher, lengthy, or the minus symbol will be little bit smaller one. ये बहुत ध्यान रखना है. प्लस सिंबल जो है थोड़ा सा बड़ा रहेगा और जो माइनस वाला सिंबल है इलेक्ट्रिक सेल में या बैटरी जिसको कहे हैं, ये थोड़ा छोटा रहेगा. ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ये सिंगल बैटरी के लिए सिंबल था. अगर एक, दो या दो से ज़्यादा बैटरीज हों तो उनका कॉम्बिनेशन इस टाइप से होगा, प्लस माइनस एंड प्लस एंड माइनस. देन प्लग की जो की होती है, if it is in open circuit it will be shown in this way. Plug key when the circuit is closed will be shown as like this. A wire joint will be shown as like this. A wire crossing without joining, तो इसको हम ऊपर से लेकर जाएंगे, टच नहीं करते हैं, जिसको joint नहीं करें. Then electric bulb can be shown in this way or this way. Instead, any load can be shown this way. A resistor or resistance, that is called R, will be shown in this way. Variable resistance और rheostat, ये जो था ये फिक्स रेसिस्टेंट है, इसको हम इस तरह से शो करेंगे. और वेरिएबल रेसिस्टेंट है, उसको दो तरीके हैं, इन तरीकों से हम इसको शो करेंगे. एमीटर इज रिटन A in a circle and plus minus, and voltmeter is written V in a circle and plus and minus are shown there. So these were the electric circuit symbols. Next we come to the law of Ohms, means Ohm's law. Ohm was a great scientist, and on his respect only it is given the name of Ohm's law. It was stated by George Simeon Ohm. ये उनका फुल नेम है साइंटिस्ट का, उनके नाम पर ही, उनके रेस्पेक्ट के लिए नाम दिया गया है ओम्स लॉ. उन्होंने ये बताया था सबसे पहले. सो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, यहाँ ध्यान दीजिए, कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस क्या होंगे. फिजिकल कंडीशंस क्या हो सकती है, यहाँ सर्किट की बात कर रहे हैं. फिर सर्किट में क्या हो सकता है, लाइक टेम्परेचर और लेंथ ऑफ द वायर
और द विड्थ मीन्स उसकी मोटाई वायर की, उसको ए से बोलेंगे हम उसका, ठीक है। देन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ से और यहाँ तक मान लो ये कोई हमने एक कंडक्टर यूज किया, तो इसके दो एंड हो गए, एक ए और इसको दूसरे को बोल सकते हैं हम बी। तो दोनों एंड पर जो डिफरेंस होगा किसमें, पोटेंशियल डिफरेंस, हमने पढ़ा भी था, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर सभी फिजिकल कंडीशंस आर इक्वल मीन्स अनचेंज्ड हैं, तो जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट और इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से हम लिखेंगे, सो और करंट जो फ्लोइंग हो रहा है उसको हम I से शो करेंगे, I से, ठीक है। तो इनके बीच में जो डायरेक्ट एक रिलेशन होगा वो इस तरह से शो करेंगे, I प्रोपोर्शनल टू V, वेयर I इज द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर and V is the potential difference across the conductor. Okay, so we can write it as V is equal to I upon R. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V is equal to I upon R, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I is equal to V upon R। पहले ये इस तरह से ही बनेगा, ठीक है, V अपॉन R, यानी जो करंट होगा वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस को डिवाइड करके किससे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हुए फ्लो होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंडक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू, इस लॉ के अकॉर्डिंग कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वन इज ओमिक कंडक्टर्स एंड द सेकंड वन इज नॉन ओमिक कंडक्टर्स। Ohmic conductors are the conductor which follow the Ohm's law, and the non-ohmic conductors are the conductors which do not follow the Ohm's law. So these are not in your syllabus. Only these ohmic conductors are there in your syllabus. This is only for your information. So here, according to the rule, according to the law of Ohm's law, what it say? The I is proportional to the V. When V is increasing, I is also increasing. Okay, this is for ohmic conductors. For non-ohmic conductor, this condition is not applicable. Got it? Then we come to next topic, that is resistance and resistivity. Resistance and resistivity, चलो इसको देखते हैं। What is resistance? It is defined as the hindrance to the flow of current. इसको समझिए, हिंड्रेंस मीन्स वी कैन से लाइक ए बैरियर। जब करंट फ्लो होता है तो उस जो कंडक्टर है, कंडक्टर में एक उस फ्लो को रोकने के लिए जो एक अवरोध पैदा होता है उसी का नाम है हिंड्रेंस, ठीक है। इट इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। ये किसका डिफरेंस रेशो है, ये रेशो है किसके इक्वल, पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट के इक्वल रेशो है, इसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस। मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज वोल्ट्स पर एम्पियर। इसका जो यूनिट है उसको लिखते हैं हम वोल्ट पर एम्पियर, और इसको ओम भी बोलते हैं, और इसका डिनोट सिंबल ये है मो। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसका जो ऑपोजिट होगा, रेसिप्रोकल जो होगा, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। मीन्स ये तो है इसको विरोध करने वाला, जो करंट को फ्लो होने से रोकता है, ये वो बाधा है। और कंडक्टेंस क्या होगी, जो फ्लो को इंक्रीज करता है, हेल्प करता है, उसको बोलेंगे हम कंडक्टेंस। सो कंडक्टेंस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द रेसिस्टेंस। द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज ओम माइनस, or we can say like this. Got it? Here high resistance,
low current. Now we will discuss the factors affecting the resistance. So resistance is proportional to the length of the conductor, and same way resistance is proportional to the unit area of cross section of conductor. So यहाँ से एक जो फॉर्मेशन होगा वो कैसे होगा, यहाँ देखिए, R proportional to L upon A. L is the length of the conductor and the A is the cross section area of the conductor. So if we remove the proportional, we get a constant that is called rho. So R is equal to rho into L upon A, where rho is the constant and it is called as specific resistance of the conductor. ये एक स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, यानी कि हर कंडक्टर जो करंट को फ्लो होने से रोकते हैं वो सबका डिफरेंट होता है. तो ये स्पेसिफिक कंडक्टर है, तो हर कंडक्टर के लिए इसका जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी. सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू रो L इंटू L अपॉन A. गॉट इट? ओके, नेक्स्ट. Specific resistance. Specific resistance is the resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area that we already have discussed. कि specific resistance का मतलब एक ऐसा resistance जो unit length और unit cross sectional area वाले कंडक्टर के ऊपर लागू होता है, उसे कहेंगे हम specific resistance. यहाँ L is equal to 1 meter and area A is equal to 1 meter square. Then R will be equal to rho. Got it? Rho कैसे हुआ ये? R is equal to rho because R is equal to rho into 1 L upon A. अब यहाँ पर हमने L को भी एक मान लिया, 1 यूनिट लेंथ मान ली इसकी, और अगर हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, so R will be equal to R into R is equal to rho. It depends on material of the conductor. और ये हर मटेरियल जो कंडक्टर होते हैं उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है. क्या? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय rho and the symbol of it is like a P. Okay. स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इज ओम मीटर और इसका यूनिट जो है ओम मीटर होता है. रो इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर. इट मीन्स अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पेशल जो रेसिस्टेंस है वो भी उसका इंक्रीज होना है, किसका? कंडक्टर का. एंड ऑल्सो नॉन एज रेसिस्टिविटी. इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस लंबा नाम है, इसकी वजह इसको रेसिस्टिविटी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज रेसिस्टिविटी टेबल, यानी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेसिस्टिविटी होती है. तो इसको एक टेबल के थ्रू यहाँ पे रखा गया है. समझिए, सिल्वर की है 1.59 इंटू 10⁻⁻8. ये बहुत कम है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें कंडक्टिविटी की, क्योंकि रेसिस्टिविटी जो है अपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी है, सो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है सिल्वर की, देन कॉपर की, देन गोल्ड की. देखो गोल्ड की सिल्वर से कम है ना. देन एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, स्टील, प्लैटिनम, लेड, देन नाइक्रोम, कोल, जर्मेनियम, सिलिकॉन. देखो इंक्रीज हो रही है. देन ह्यूमन स्किन, ग्लास, रबर, सल्फर एंड क्वार्ट्ज. सो ये सब की रेसिस्टिविटी जो है कितने टेम्परेचर पे ली गई है? ये 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ली गई है. सो रेसिस्टिविटी जो है हर मटेरियल की अलग अलग होती है. गॉट इट? नाउ द टाइप ऑफ रेसिस्टेंस. रेसिस्टेंस दो टाइप के होते हैं. एक होता है फिक्स्ड रेसिस्टेंस, हमने उसमें सिंबल्स में भी देखा इनको, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, एंड द सेकंड वन इज वेरिएबल रेसिस्टेंस. फिक्स्ड रेसिस्टेंस आर देयर वैल्यू डज नॉट चेंज अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस. अगर फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाए तो इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती. दे आर सेट एट ए पर्टिकुलर वैल्यू.
और वो एक किसी फिक्स वैल्यू पर क्या रहते हैं, सेट रहते हैं। बट वेरिएबल रेजिस्टेंस, देयर रेजिस्टेंस कैन बी इजीली चेंज्ड बाय चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस थी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके क्रॉस एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और उसकी लेंथ के ऊपर। सो ये अगर इनको कम ज़्यादा किया जाएगा तो उसकी रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ फिक्स्ड रेसिस्टर दिखाए हैं, और ये जो वेरिएबल रेसिस्टर है जो हमारे लैब में आपको दिख जाएगा, और हम इसके एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। आई होप आप भी करेंगे, तो कोरोना के बाद हम इसको लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। नेक्स्ट इज मेजरिंग डिवाइसेस। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड जो डिवाइसेस हैं उनको कैसे कैसे हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या उनके नेम हैं। लेट अस हैव अ व्यू। फर्स्ट वन इज एमीटर। एमीटर इज शोन इन दिस वे, इट्स सिंबल इज ए और इट कनेक्ट्स इन द सर्किट। ये समझ, बहुत अच्छी बात ये ध्यान में रखने की है कि इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। अब सीरीज और पैरेलल जो कनेक्शन है ये हम आगे अभी आने वाले स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको किस तरह से ऐड करना है, इन्हें सीरीज कनेक्ट करना है। पॉजिटिव साइड ऑफ एमीटर मस्ट बी कनेक्टेड नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल, गॉट इट, ऑफ द बैटरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। और नेगेटिव वाला फारदेस्ट में कनेक्ट होगा। तो नियरेस्ट रेड वाला जो है वो नियरेस्ट पे कनेक्ट होगा, और जो ब्लैक है या ब्लू है वो दूर वाले पे कनेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल कंडीशन में पैरेलल तरीके से इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। The positive side of voltmeter is connected to the positive terminal of the cell and vice versa, और नेगेटिव वाला नेगेटिव के साथ में कनेक्ट किया जाता है। वाइस वर्सा का मीन्स यही है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ में एंड द नेगेटिव विल बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, गॉट इट। सो दिस इज शोन हियर। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको थोड़ा विशेष अटेंशन के साथ समझना चाहिए, देखना चाहिए। चलिए देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। देयर आर टू वेज ऑफ जॉइनिंग रेसिस्टेंसेस टुगेदर। दीज आर फर्स्ट वन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सीरीज connection. Resistance in series. When two resistors or more, two या दो से ज़्यादा, two or more resistors are connected end to end consecutively, they are said to be connected in series. एक के एंड से दूसरा कनेक्टर हो गया, दूसरे के एंड से तीसरा रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया, तो एक सीरीज बन जाएगी। तो ऐसी सीरीज को हम सीरीज, जैसे एक रेसिस्टर ये हो गया, फिर यहाँ से दूसरा रेसिस्टर हमने ऐड कर दिया, फिर यहाँ से एक तीसरा रेसिस्टर हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से जो रेसिस्टर हमने ऐड कर रहे हैं, ऐसे जो अरेंजमेंट है उसको सीरीज अरेंजमेंट बोलेंगे। किसका? सर्किट का सीरीज अरेंजमेंट। When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end. तो इससे क्या होगा, सबके एंड पर, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस हो सकता है कुछ 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, और अगर हम इसको सेम भी ले लें, 1 1 1 भी ले लें, तो जो यहाँ पर रेसिस्टेंस है और यहाँ पर रेसिस्टेंस है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एंड टू एंड जो इसका रेसिस्टेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डिफरेंट होगा, विच डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ द रेसिस्टेंस। ये जो रेसिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर ये डिपेंड करता है। बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द एंड्स ऑफ ऑल द सीरीज रेसिस्टर इन सीरीज इज इक्वल। पर एक बात ध्यान रखने की है कि सबका जो अगर टोटल हम बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें हम, तो वो जो है सीरीज, ऑल द सीरीज रेसिस्टर हैं उन सभी के इक्वल होगा, यानी ऐड करते चले जाएंगे हम अगर उनको। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1, दूसरा वाला 2 है तो 2, देन थर्ड वन इज 3 तो 3,
तो टोटल रेसिस्टेंस होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। नाउ यू जस्ट सी कि हमने देखा 1 + 2 + 3, सो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो रहा है, 6 के इक्वल हो रहा है। लेकिन यहाँ ध्यान दो, व्हेन ए नंबर ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, खूब सारे रेसिस्टर जो हैं एक सीरीज में कनेक्टेड हो जाते हैं, देन द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। बट इसमें ध्यान ये देने की बात है कि जो करंट है, जो आई जो फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट V का जो वैल्यू है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, और इसको अच्छे से समझ लीजिए, जैसे द फिगर शोज 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। यहाँ पे देखिए R1, R2 एंड R3 3 रेजिस्टेंस है यहाँ पर, कनेक्टेड इन ए सीरीज में कनेक्टेड है। नाउ सपोज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 इज V1, तो यहाँ से जो एंड टू एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V1, और R2 में होगा V2, और R3 के लिए कितना होगा, V3। लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी बी V, यानी कि टोटल इसको मान लेते हैं हम V के तीनों, तो तीनों का जो V होगा वो तीनों के टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम ओम्स लॉ में अप्लाई करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रेसिस्टेंस सेपरेटली, अगर सेपरेटली हम इसको अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, V1 के लिए I इंटू R1, V2 के लिए I इंटू R2 क्योंकि R का वैल्यू चेंज हो रहा है, देन V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। अब R चेंज हो रहा है तो V भी चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखते हैं, अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे किसको, यहाँ से देखिए I इंटू R, यहाँ पे देखो आई आर जो है V को V के इक्वल कर देते हैं इसको हम, सो आई आर इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ये यहाँ से देखिए, है ना, नहीं समझ में आया, ये V के इक्वल ये हो गया, देन V1 ये वाला, और V2 ये, दिस वन इज V2, देन दिस वन इज V3, और वी कैन से I इंटू R इज इक्वल I इज कॉमन फॉर ऑल दीज 3, so I will be kept out in the from the bracket, then inside the bracket there will be R1 plus R2 plus R3, so I is cancelled by the I. Now where what is left here, R, and R is equal to the total of all 3 resistors। ठीक है, तो ये वैल्यू जो R की आ रही है, ये तीनों वैल्यू, तीनों जो रेसिस्टर हैं उनके टोटल के इक्वल आती है। इट मीन्स जो टोटल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो जितने भी रेसिस्टेंस हम लगाते जाएंगे उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता चला जाता है। Therefore we conclude that the sum total resistance in a series resistance connection is equal to the sum of all the resistance। ये जो मैं कह रहा हूँ वही बात है। ठीक है, चलिए सीरीज जो अरेंजमेंट है रेसिस्टेंस का, सीरीज हमने पढ़ लिया है। पैरेलल जो अरेंजमेंट है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।